ہلو ہلو، السلام علیکم. ارے بھائی، ہلو عظمت علی بھائی. ارے ابو بھائی، ہاں بولو بھائی. یہ آئیڈیا کارڈ کیوں دیتے ہو یار؟ آڈیو لمبی ہو رہی تھی بھائی. ارے بھائی تو جو کاٹو تو کم سے کم ہمیں بتاؤ تو کہ ہم کاٹنے جا رہے ہیں. اب تم نہیں ایسی وہ جگہ پر کاٹتے ہو کہ ہم سنو، ہم ایسی جگہ پر آپ کاٹتے ہیں کہ جو ہے ہم نے کہا اچھا سنو یا ہم نے کہا ہم تمہاری بات مان رہے ہیں تو وہاں پر کاٹ کر کے جو ہے اسٹاپ کر دیتے ہو بھائی تاکہ لوگوں کو یہ بتاؤ. سنو، تاکہ لوگوں 45 کو یہ منٹ بتاؤ. کی آڈیو جیسے بھائی وہ بن جاتی ہے فون میں ہاں. کاٹ دیتا ہوں، کیونکہ اتنی ایک دو گھنٹے کی آڈیو کوئی سنے گا نہیں. اور میں ارے یہ میرے بھائی، چاہتا ہوں ہاں کہ عوام کی اصلاح ہو. آپ کے گاؤں جو آپ کے گاؤں میں جو آڈیو جائے گاؤں والوں کی اصلاح ہو. سنو تو ایسی جگہ پر کاٹا کرو کہ جہاں پر دونوں کی بات ہے. ہم تم سے کہتے سچ ہم نے تمہاری اس بات کو مان لیا، اب تم اس کو ڈال دو کہ دیکھو یہ عظمت علی نے اس بات کو بھائی میں مان لیا. ساری آڈیو ڈالتا ہوں، میں کہ میرے اندر یہ سب چندی چوری والا کام نہیں ہے. ارے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تمہاری خیر بات مان آپ لیے، کو تمہاری دقت بات کیا مان ہے لیے. میرے بھائی؟ ہم نے سب کچھ تو آپ کو بتا دیا، اب آپ کیا نہیں چاہتے ٹھیک ہیں؟ ہے، نہیں بتایا نا ہمارا جو مسئلہ تھا پوچھیے اس نا، مسئلے آپ کی تو اپنا بات کیا مسئلہ ہی نہیں. صحیح نہیں پوچھ رہے اتنی دیر سے. تم خالی اسی لیے میں نے کہا تھا خالی مفتی کا نمبر چاہیے ارے تاکہ آپ مفتی سوال جو ہے پوچھیے نا، نہیں آپ بول کرتا ہے. بچن زیادہ کرنے لگتے ہیں. ہم بول بچن کی بات کر رہے ہیں، آپ دنیا بھر کی بات کرتے ہیں. ہم خالی یس یا نو کی بات کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا حکم ہے. تو اچھا تم آپ دنیا بھر کی ابھی بات میں آپ سے بتاتے کہہ ہیں. دوں اعلیٰ حضرت آپ کا کتا ہے، بتاؤ یس اور نو میں، تو آدمی ہاں، کیا میرے بھائی خالی ہاں نا میں جواب دے دے گا؟ بھائی وہ تو بتائے کہیں گا نا، گے کہ بھائی تفصیل اس کی دے گا نہیں کہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کتا کہا تو وہاں پہ بھائی وہ مثال ہے وفاداری کی، تو وہ اپنی دے گا نا تفصیل. تو اسی طریقے سے آپ جب ہم سے کچھ بھائی وہ ہاں یا نہ میں پوچھتے ہیں تو میں بھی تھوڑے بہت بھائی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، تبھی تو آپ کو جواب دوں گا. آپ ڈائریکٹ پوچھتے ہو ہاں یا نہ میں جواب دو، ایسے کیسے پاسبل ہے بھائی؟ کچھ جواب ہوتے ہیں جو ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، لیکن سارے جواب ایسے نہیں ہوتے کہ ہم ہاں یا نہ میں آپ کو دے دیں. آپ کوئی ایسا سوال پوچھو جس کا جواب بھائی ہاں یا نہ میں ہو، تو اگر پاسبل ہوگا تو ہم دے دیں گے. لیکن آپ سوال پوچھتے ہو ایک دم مطلب بھائی الٹے سیدھے. ہم نے خالی آپ سے 3 ہی سوال پوچھا تھا 4، اس کو تم نے اتنا لمبا کر دیتے ہو سال بات ہی دور چلی جاتی ہے، موڑ ہی دوسرا دے دیتے ہو. عظمت علی میرے پیارے بھائی، آپ کو جو پوچھنا ہے سکون سے آرام سے بول کے پوچھو، ٹھیک؟ ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں تاکہ کل کو آپ مطلب یہ نہ کہو کہ ہم کو بولنے نہیں دیتے. لیکن سوال ایک دم مطلب بھائی صحیح سے پوچھیے گا. کیا جاننا چاہ رہے ہیں اس کا مین پارٹ ہم سے پوچھیے گا، پوری مطلب بھائی تقریر آپ نہ دیجیے گا. ہم تقریر کہاں کرتے ہیں، ہم تو صرف یہ کہ ہم نے سوال میرا یہ تھا کہ اہل حدیث کی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ بریلویوں سے اور دیوبندیوں سے یا سیاحوں سے جو بھی نکلے ہیں اہل حدیث وہ آدھی نکلے ہیں. پہلے صرف حنفی تھے اور شیعہ تھے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں تھا. تو اور آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اہل حدیث تھے، تو میرا کہنے کا مطلب ہے سچ کون بول رہا ہے، آپ بول رہے ہیں کہ لکھنے والا بول رہا ہے؟ میرا کہنے کا سوال یہ ہے. میرا سوال ہو گیا، آپ جواب دے دیں. اور پوچھ لیجیے. نہیں، اور اس کا جواب دیں گے تو پھر ہم دوسرا سوال کریں گے. میرا سوال ہے، آپ کا سوال سن لیا کہ اہل حدیث عالم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو ہاں بھی بھائی انڈیا میں جو اہل ہاں حدیث آئے ہیں وہ شیعوں ہاں سے حنفیت سے آئے ہیں. اور میں ہاں نے یہ کہا کہ انڈیا میں جو سب سے پہلا بھائی جو ایمان والا تھا وہ اہل حدیث تھا. تو دونوں ہاں کی بات صحیح ہے. اب آپ پوچھیے دوسرا سوال. ہاں، دونوں کیسے صحیح ہے؟ اب اس کو ہم کو سمجھائیے دونوں صحیح کیسے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دونوں صحیح ہے، لیکن چلیے ٹھیک ہے، لمبا نہیں دونوں ہونا صحیح چاہیے، اس لمبا طریقے سے ہیں. لمبا اب نہیں دیکھیے، ہونا اب چاہیے. آپ نے جواب مانگا ہے تو اگر اطمینان سے 1 منٹ کا تو کم از کم ٹائم ہم کو دیجیے گا، کیونکہ ہماری بالکل عادت دیں گے، اتنی 2 نہیں ہے منٹ کہ کا ہم دیں گھنٹوں گے. آپ کو جواب دیں. ہاں 2 منٹ کا، لیکن زیادہ نہیں. دیکھیے اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے نا. یہ چیز کو مانتے ہیں کہ نہیں، یا اسلام سے باہر ہے آپ کے نزدیک اہل حدیث؟ پہلے یہ بتا دیجیے. ہمارے نزدیک جو اللہ کی شان میں اللہ کے رسول کی شان میں توہین کرے تو دائرۂ اسلام سے خارج ہے. تو اچھا چلیے ایک توہین پہلے آپ ہم کو بتا دیجیے. یہ توہین دیکھیے، کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ جیسے چھوٹی مخلوق اور بڑی مخلوق کے بارے میں
इसका जवाब दे चुके हैं, कोई नया एतराज कीजिए। अरे इतराज क्या, उसी नहीं तो ये फिर से आइडिया बना करके इसको भी डालो, हम नहीं कह रहे हैं, ये मुख्तर हमको सवाल का जवाब चाहिए। वो कहता है कि छोटी मखलूक इंसान से ज्यादा है, हम मान रहे हैं, लेकिन बड़ी मखलूक यानी कि जो इंसान से भी बड़ी मखलूक है, अब वो सच कह रहा है कि गलत कह रहा है, वो कैसा होगा? भाई मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी मखलूक बनाई है उनमें सबसे अफजल मखलूक वो इंसान है, और इंसानों में सबसे जो अफजल है वो अंबिया अलैहिस्सलाम की जमात है। तो ऐसा लिखने वाले के बारे में तुम्हारा क्या राय है? बता तो दिया, वो कम इल्म है मेरे भाई, उसका अकीदा दुरुस्त नहीं है। इसे दायरे इस्लाम से खारिज करोगे कि नहीं करोगे? भाई दायरे इस्लाम से हम यूं मतलब धक्के पे खारिज हम नहीं करते आप लोग की तरह। नहीं, क्यों नहीं करोगे? दायरे इस्लाम से खारिज करने के क्या उसूल है, क्राइटेरिया है, आपको मालूम है या मैं आपको बताऊं? उसे बिदअती कह रहे हो ना, है उसने जो है अलग बात कही, तो बिदअती उसमें रास हो गया, उसने कोई दीन में भाई को नई बिदअत कोई ना इजाद कर दी। ये नई बात नहीं है, ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल जो दूसरी मखलूक़ात रब ने पैदा की है, ये नई बात नहीं है। अरे भाई ये उसने कौन से कॉन्टेक्स्ट में लिखी है वो देखना पड़ेगा ना। अब आप कौन सी किताब पढ़ के, किताब का नाम बताओ। किताब का नाम पता है? अभी रुको, एक मिनट, ताला खुला है क्या? अच्छा चलिए, ताला ना खोलिए आप, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कोई भी किताब हो, ठीक है, जिसमें भी ऐसी भी भाई वो बातें लिखी हुई हैं, हो सकता है उन्होंने कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई पस मंजर में लोगों को आम तौर से समझाने के लिए उन्होंने इस बात को बता दिया हो, वो हम उनको इस्लाम से बाहर हम नहीं कर सकते भाई। हम कौन होते हैं किसी को इस्लाम से बाहर करने वाले? अच्छा यानी नबी तुम्हारा ये नबी की तरह नहीं है कि जो कोई कहे कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल या उससे बड़ी मखलूक पैदा की है, ये नबी की तरह? मैंने अहले हदीस जमात का अकीदा आपको बता दिया ना, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे बता दिया ना, वो बेचारा कम इल्म है, उसकी तहकीक में कमजोरी होगी, उसने अपनी थोड़ी बहुत तहकीक के हिसाब से भाई किताब को भाई वो लिख दिया होगा। कोई वो मोतबर किताब थोड़ी ना है हमारे मसलक की जो आप पढ़ रहे हो, वो तो किसी आलिम दीन ने आवाम को समझाने के लिए किताब भाई वो लिखी। बरेलवियों की किताब पढ़ करके तो जो है सब बताते हो कि ऐसा है वैसा है, उन्होंने ऐसा कह दिया, अल्लाह ने ऐसा इंसान पैदा किया, उन्होंने अपने आप को कुत्ता कह दिया, तो तुम ये कहते हो कि वो तो कुत्ते की तरह। तो हम इसलिए कहते हैं ना क्योंकि आपके आला हजरत ने फरमाया है ना कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो इसलिए हम आपको आपकी किताबें बताते हैं, कुतुब बताते हैं, उसका हवाला देते हैं, उसमें जो गंदगी है वो बताते हैं। हम भी कहते हैं ना कि अरे भैया, हम भी कहते हैं कि जो हमारा दीन है वो हक है, जो हमारे दीन पर है, जो हमारे मसलक पर है, वही सच्चा है। यानी कि जो अल्लाह और अल्लाह के नबी के दीन पे है, किताबों सुन्नत पे है, वो बातिल है, और आला हजरत की जो किताबों के दीन पे है वो मतलब एकदम सही हक है। आला हजरत थू है ऐसे लोगों पे, थू इतना जलील अकीदा, इतना गंदा अकीदा कि मेरे आला हजरत का दीन हक है और अल्लाह के नबी का दीन बातिल है। शर्म आनी चाहिए मेरे भाई आपको। तुम्हारे दिमाग में जो गोबर भर चुका है, अपने मौलाना को बचाने के लिए कह रहे हो कि कम इल्म है, ऐसा लिख दिया होगा। तो हम तो आला हजरत को भी कह रहे हैं कि वो कम इल्म है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात को लिख दिया है कि मेरे दीन और मेरे मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। हयाते आला हजरत, उसकी जिल्द नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो हम पढ़े हैं। तुमसे हम पूछ रहे कि तुम्हारा दीन क्या है, तो तुम भी यही कहोगे मेरा दीन इस्लाम है। मेरा दीन इस्लाम है, मेरा मजहब कुरान हदीस है। मेरा दीन इस्लाम हो के मेरा जो भाई जो मतलब जो मजहब है वो आला हजरत की किताबें नहीं है। मेरा दीन इस्लाम है, ये लंबी तौर से मत करो। आपका दीन इस्लाम है, देखिए नहीं आपका दीन इस्लाम है। हाँ, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा मजहब इस्लाम है, मजहब भी इस्लाम है। हम बोल रहे हैं कुरान हदीस पर हम है, अरे उसी पर जो तो कुरान हदीस में है ना, तो यानी कि जो आला हजरत की भाई जो मतलब भाई किताबें लिखी हुई हैं वो कुरान हदीस है। आला हजरत ने जो किताबें लिखी हैं कुरान हदीस से हट करके लिखी हैं। और क्या है जो तुम्हारे मुल्ला जो किताबें लिख रहे हैं भाई, फतावा रज़विया पढ़ लीजिए, ऐसे ऐसे फतवे हैं जिसका कुरान हदीस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तुमको भी हम किताब लेकर के फतावा रज़विया में आपके लिखा हुआ है कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हराम है, तो ये कौन सी कुरान हदीस से साबित है? और जो ना इस पे अमल करे मेरे भाई, क्या वो मेरे भाई जो हक दीन उससे हट गया? नहीं, कहाँ पर कहा है?
क्या लिखा है? अच्छा एक चीज बताइए मेरे प्यारे भाई, ठीक। नहीं, क्या क्या कहा है, हम सुने नहीं उसको। आला हजरत ने फतावा रजविया की जिल्द नंबर 14 में ये मेरे भाई कहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हराम है। तो अब भाई वो तो अंग्रेजों के एजेंट हो गए ना, वो कह रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ कोई संघर्ष ना करो, जिहाद ना करो। अब रुको, आप यहीं पर रुक जाओ, ठीक है। सुनो, आपकी किताब अल बरेलवियत, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों में आए थे ये एक तरह से अल्लाह का अजाब था। सुनो, इसमें लिखा हुआ है ये अल्लाह का एक अजाब था। अब ये बताओ किसके अंदर है अल्लाह के अजाब से टकराने की? जो अल्लाह के अजाब से टकराएगा वो अल्लाह का गुस्ताख होगा कि वफादार होगा? अंग्रेजों का इंडिया में कब्जा करना, जुल्म करना, ये बिल्कुल अल्लाह का अजाब था, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो किताब व सुन्नत को छोड़ देता है अल्लाह सुब्हानो ताला उसके ऊपर जालिम भाई वो बादशाह को भाई वो लागू कर देता है। सुनो, अल्लाह का अजाब ही था ना। हाँ, जो आए थे वो अल्लाह का अजाब था। तो ये अहले हदीस तो अंग्रेज अल्लाह का अजाब था, तो अल्लाह के अजाब का साथ दे रहे थे आपके आला हजरत। वो कह रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना वो हराम है, उन्होंने हराम का फतवा दे दिया। अल्लाह के अजाब से तुम टकरा रहे थे। बिल्कुल मेरे भाई, अल्लाह का अजाब है तो अल्लाह का अजाब अल्लाह ही तो हटाएगा ना। अजाब से तुम टकरा रहे थे। बिल्कुल भाई, हम तौबा करेंगे, इस्तगफार पढ़ेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, दीन पे अमल करेंगे, अल्लाह ताला अपना अजाब हटा लेगा। मतलब तुम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो ये अल्लाह का अजाब था, तो तुम मतलब जो अल्लाह की मुखालफत कर रहे थे। नहीं, अल्लाह ताला अगर आपको अजाब डाल दो और आपको कोई नहीं, एक चीज बताइए, आप जो माज़अल्लाह का जो मेरे भाई गाना गा रहे हो, सुन लो पहले मेरी बात अजमत अली भाई। वो कौन होगा जो अल्लाह, मानिए आपके ऊपर अल्लाह का अजाब आ गया, आपको कैंसर हो गया, तो क्या आप इलाज नहीं कराओगे? आप कह दोगे नहीं अल्लाह का अजाब है हमको मरने दो, आप इलाज नहीं कराओगे? अल्लाह का जो है अजाब नहीं, आपके ऊपर अल्लाह का अजाब आ गया, आपका मकान टूट गया, उसके ऊपर बिजली गिर गई, तो क्या मकान आप अपना बनवाओगे नहीं? कहोगे नहीं अल्लाह का अजाब है छोड़ो इसको? हम कहते हैं तुम्हारा घर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तो हम तौबा करेंगे ना, तभी तो अजाब हटेगा ना। अरे तो तुम और आपके आला हज़रत तो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हराम है, यानी कि जो अल्लाह का भाई अजाब था उसको टालने के लिए अगर हम कोई कोशिश करते हैं तो वो हराम है। अजाब है, सुनो, तुमको जब मालूम है कि अल्लाह का अजाब है तो तुमको तौबा करना चाहिए, उससे टकराना नहीं चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। तो तौबा के जरिए तो टकराएंगे ना, कोई अंग्रेजों को सीधे थोड़ी ना। जो हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जिहाद कर रहे थे, तो आपके आला हज़रत भाई, जो आपके आला हज़रत थे उन्होंने तो मना कर दिया था ना कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हराम है। बकवासबाजी मत भाई ये लफ्जों की जो मेरे भाई जादूगरी है ना, ये कहीं और जाके खेलना, मेरे सामने ना खेलना। सुनो, बकवासबाजी मत करो। आप किसान अजमत अली साहब, आपके ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा, बीमारी आपके ऊपर आएगी तो आप इलाज ना कराइएगा। नहीं, हम ये कहेंगे कि अल्लाह का अजाब है, हमारे ऊपर कोई बीमारी आएगा तो हम कहेंगे अल्लाह का अजाब है, ऐसा हम तो क्या होगा? आप अगर मेरे भाई शिर्क करोगे और मेरे भाई बिदात करोगे तो अल्लाह का अजाब आपके ऊपर आएगा नहीं, और आएगा मानिए आपको अल्लाह ना करे कैंसर हो जाता है, अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाता है, तो आप अपना इलाज नहीं कराओगे? हम उसका इलाज कराएंगे तो कराओगे ना, यानी कि माज़अल्लाह तौबा तौबा तौबा, अल्लाह के अजाब से मतलब तुम भाई वो इलाज के जरिए मतलब तुम लड़ोगे अल्लाह के अजाब से, तुम तौबा तौबा तौबा, तुम तो मेरे भाई दीन इस्लाम से मेरे भाई बेकार हो गए। बात कर रहे हो बस मीठा मीठा जब कड़वा कड़वा तू भाई, जो उसूल हमारे लिए बनाते हो अपने ऊपर तो लागू किया करो। सुनो, ये तो मुल्ला इस्माइल दहलवी ने जो है फतवा दिया था कि जो है अंग्रेजों का न लड़ा जाए, वो हमारे वफादार हैं। हाँ तो वो देवबंदी था ना, उनके जो पीर, अरे वो अहले हदीस नहीं था इस्माइल दहलवी, वो मेरे भाई देवबंदी था। आप बरेलवी देवबंदी एक ही थाली के चट्टे बच्चे हो। अरे यार, वो मुल्ला इस्माइल दहलवी को तुम अहले हदीस नहीं कहते हो, उसे तुम कहोगे काफिर है, भैया मुबहम शख्सियत है, मुबहम। अरे यार तुम बताओ तो सही, तुम मुल्ला इस्माइल दहलवी को काफिर कहोगे? भाई काफिर हम किसी को क्यों कहें मेरे भाई? फिर कैसे ये तुम लोग बात बात पे जो देखो, तुम्हारे आला हज़रत का काम था बात बात पे लोगों को काफिर बना देना। नहीं,
देखो तुम्हारा काम ये आला है कि हजरत जब तुम पान खाने के फंसते इतने हो, शौकीन थे कि ये पान कहते खाने हम के नहीं चक्कर कहेंगे। में एक छोटे बच्चे को कंटाप सुनो, मार तुम दिया। काफिर भी सुनो, अरे मेरे भाई अपू, तुम हमको काफिर भी कहते हो, लोग कहते हो, हम काफिर भी नहीं कहते। मुशरिक कौन है? मुशरिक कौन बताओ? मुशरिक बरेलवी। किसे कहते हैं? मुशरिक जो होगा, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा, वही तो काफिर होगा। तुम हमें भाई काफिर भी आपको कहते हो, यही नहीं हम पता कहते हम कहते काफिर, भी नहीं है, तुम बेवकूफ बनाते हो। भाई काफिर किसको कहते हैं और मेरे भैया हैं? मुशरिक किसको कहते हैं? आप पहले फर्क समझिए दोनों का। आपके नजदीक सब दोनों एक ही है क्या? अच्छा एक बात बताइए, चलो दोनों हैं, वो सारे जो है मक्का जो मुशरिकीन थे, अच्छा, जो आपने ये जो अभी हवाला दिया है कि जो ये मतलब इंडिया में जो अंग्रेज आए थे और जुल्म किया था वो अल्लाह का अजाब है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये और बरेलियत में है। अब ये किताब हमारे पास जो घर में है, नहीं तो हम उसको मुसन्निफ का भी नाम बताते। हम अच्छा चलिए ठीक है। अल बरेलियत किताब में जो मेरे भाई ये लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में जो अंग्रेजों का राज आ गया था, जो जुल्म थी, जातियां थी, वो अल्लाह की तरफ से आजाद था, तो बिल्कुल सही बात है। लोगों ने दीन इस्लाम को एकदम भाई वो मजाक बना दिया था, कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम पे अमल नहीं करता था, तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने जालिम बादशाह को भाई इंडिया के ऊपर भैया भाई वो कायम कर दिया, मुसल्लत कर दिया। लेकिन ईमान वालों ने तौहीद की बरकत से अपने इस्तगफार से, नमाजों के जरिए इस मेरे भैया जो आजाद था उसको टाला। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरे यूनुस की आयत नंबर 107 में कि अगर अल्लाह तुमको किसी मुसीबत में डाल दे तो कौन तुमको उससे बाहर कर सकता है। तो अल्लाह ने मुसीबत में डाला तो अल्लाह ही निकालेगा। लेकिन आपके आला हज़रत ने क्या कहा कि जो ये अंग्रेज हैं उनके खिलाफ जिहाद करना हराम है, यानी कि मुसीबत को टालने की कोशिश करना उनके नजदीक मेरे भैया हराम है। तो आला हज़रत तो अंग्रेज के गुलाम हो गए। ये कहाँ पर लिखा है? आला हज़रत ने कहा कि जो है उनसे फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 14 खोल के पढ़ लेना, उसमें आला हज़रत का फतवा है अंग्रेजों के मेरे भैया खिलाफ संघर्ष करना, जिहाद करना हराम है। और यही फतवा इस्माइल देहलवी का भी है। तो दोनों भाई भाई हुए ना। अरे भैया, पहले हदीस जमात ने तो अलहमदुलिल्लाह जिहाद किया अंग्रेजों के खिलाफ। मेरे भाई हिंदुस्तान में आजादी की जंग में अहले हदीस सबसे आगे थे, बरेलवी देवबंदी तो पीछे थे। एक तरफ कि तुमको मालूम है कि अल्लाह का अजाब है, तो तुमको तौबा करना चाहिए, इस्तगफार करना चाहिए। तो भाई तौबा करेंगे मस्जिद के अंदर करेंगे या आपके सामने आके तौबा करेंगे गालों को पीट के? लेकिन उसे तो नहीं, आप तो देख रहे थे किसने तौबा किया किसने नहीं किया। गोलियां बरसा रहे थे। अंग्रेज लोग औरतों को मारते थे, जुल्म करते थे, बलात्कार करते थे, लोगों को अपना मेरे भाई को नौकर बना लिया था, गुलाम बना लिया था, अपनी लैट्रिन साफ करवाते थे, अपने घोड़ों की मेरे भाई वो साफ सफाई करवाते थे। इतना जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था, लोग रोते थे अल्लाह के सामने, अल्लाह से पनाह मांगते थे कि ऐ अल्लाह हमको बचा ले, इन जालिमों से बचा ले। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, उन्होंने मेरे भाई संघर्ष किया, जिहाद किया, और एकदम कदम से कदम मिला के उन्होंने मेरे भाई कंधे से कंधे मिला के अंग्रेजों का सामना किया। अल्लाह सुब्हानो तआला की मदद आई और देश हमारा आजाद हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों ने मेहनत किया ना। लेकिन इस मेहनत को रोकने के लिए आपके आला हजरत ने बरेलवियों को पहले रोक दिया कि देखो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हराम है, क्योंकि उनको अंग्रेजों से पैसा मिल रहा था, तो उन्होंने रोक लिया। किसको मिलता था? भाई अशरफ अली थानवी 600 रुपए की तनख्वाह पे अंग्रेजों के वहाँ नौकरी करते थे, और आला हजरत को अंग्रेजों के खिलाफ मेरे भाई जो मतलब संघर्ष करना है, लड़ाई करना है, जिहाद करना है, इससे लोगों को रोकने के लिए अंग्रेजों के मेरे भाई हो गए वफादार वो। इसीलिए तो आला हज़रत का कॉल है अनवारे रज़ा सफा नंबर 238 पे कि मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। क्यों? क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, और आला हज़रत अंग्रेजों के वफादार थे। अंग्रेजों के वफादार थे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया ना। क्या साबित हो गया? क्या साबित कर दिया? इसीलिए भाई कह रहे हैं कि अहले सुन्नत अहले हदीस को जो जलील करना चाहेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इस दुनिया में ही मेरे भाई जलील कर देगा। आला हजरत ने अहले हदीसों को काफिर कहा, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके ही फतवों से, उनकी ही किताबों से उनको जलील कर दिया। तो ये होता है। वाह भाई वाह, ऐसा बोलो कि हम सब जो है वो देवबंदी और अहले हदीस सब एक ही जमात के हैं।
भैया बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, ये तीनों हनफियत के चट्टे बच्चे हैं। अभी तुमको मालूम नहीं है उस किताबों को, वहाँ तक पढ़ा नहीं, इसीलिए मैं तुमको थोड़ा सा समझा रहा था, लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो भाई। जो पूछ रहे हैं आपकी किताबों की अगर मैंने गंदगियां आवाम में खोलना शुरू की ना, तो कसम अल्लाह की खा के कह रहा हूँ, अगर कोई एक बरेलवी इस पूरी कायनात में जर्रा बराबर भी अगर उसके अंदर भाई ईमान होगा ना, तो रो रो के अल्लाह से तौबा करके अहले सुन्नत भाई वो अपने आप को बनाएगा, वो किताब सुन्नत को थाम लेगा। मैंने अभी तुमको तुम्हारे घर की गंदगी दिखा रहे हैं। मेरा तो खुला चैलेंज है आपको, आपकी तमाम मेरे भाई जमात को, बिरादरी को, मसलक को, कि अहले हदीस का एक अकीदा, एक मसले मसाइल बता दो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ हो, हम तौबा करने के लिए तैयार है। एक मसला बताओ ना। रसूल को तुम कहते हो कि वो अव्वल नबी नहीं है। अव्वल नहीं है, अव्वल तो आदम अलैहिस्सलाम है ना, वो आखिरी नबी है, खत्म। तुम्हारा दूसरा भाई कहता है ऊपर नबूवत का खात्मा हो गया, तो तुम ना उसे तुम काफिर कह रहे हो, ना उसे दायरे इस्लाम से खारिज कर रहे हो, ना ये कह रहे हो कि वो गलत है। भैया अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में फरमाता है कि जब कोई फासिक तुम तक कोई बात लेके आए, खबर लेके आए, तो उसकी तहकीक कर लो आगे पहुंचाने से पहले। तो आप तो बरेलवी फासिक हो, आप बता रहे हो हमारे आलिम ने ऐसा कहा, तो जब तक हम देख नहीं लेंगे हमारे आलिम ने कहा है कि नहीं, तब तक हम कैसे आगे बात बढ़ाएं? हम तुम्हारी कैसे बात करके जो तौबा कर रहे हैं, तो हम तो हवाला दे रहे हैं ना, आला हज़रत की किताबों का, उसका स्कैन दे रहे हैं, उसकी फोटो दे रहे हैं, किताब का पेज आपको बता रहे हैं, जिल्द नंबर बता रहे हैं, सफा नंबर बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। पहले हदीस जो बात कहता है भाई वो दलील के साथ कहता है। पहले हदीस की हर बात अल्हम्दुलिल्लाह दलील से होती है। ये हवाई फायरिंग करना हमारी आदत नहीं है। अरे हम भी तुमको फोटो दें? किसकी फोटो दें? यही जो आपसे कह रहे हैं। अरे मोतबर किताबों की दीजिए ना, अहले हदीस की जो मोतबर किताब है वो एक कुरान और हदीस, उसमें कोई आपको मेरे पे गलती दिखती तो आप हमें बताइए ना। जैसे आपके वहाँ की मोतबर किताबें मेरे पे हिदाया है, दुर्र मुख्तार है, फतावा आलमगीरी है, ततर खानिया है, फिकुल अकबर है, ठीक है, और ये आपकी आला हजरत की जो मेरे भाई कुतुब हैं, जैसे भाई ये आपके जो बरेलवी मेरे भाई कुतुब हैं, फतावा रज़िया, और आपकी मेरे भाई ये मलफूजात आला हजरत, और आपकी हयाते आला हजरत, और आपकी जाल हक। मैं आपकी मेरे भाई जो आपके मोतबर किताबें हैं जिसका कोई आलिम इनकार नहीं कर सकता, वो किताबें आपको बता रहा हूँ। और आप तो ऐसी किताब बता रहे हो जो किसी आलिम ने कब कहाँ लिखी कोई पता नहीं। सुनो, ये जो तुम्हारे यहाँ कुतुब खाने हैं, दिल्ली में कुतुब खाना है, और जो बम्बई में कुतुब खाना है, क्या यहाँ पर जो है कुरान हदीस के खिलाफ जो किताबें लिखी जाती हैं, इसे कुतुब नहीं कहते हो? अहले हदीस की जो बेसिक मेरे भाई किताब है, अब आपको बता देते हैं, आपके आलिमों ने भी आपको इतनी इल्मी बात नहीं बताई होगी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये इंशाल्लाह आपकी तमाम बिरादरी के लिए भाई ये काम आएगी। अहले हदीस की जो बुनियादी भाई जो अकीदे की मसले मसाइल की किताब है वो है कुरान और हदीस। अब कुरान और हदीस से जो बात साबित होती है उसके ऊपर हम लोगों ने अलग अलग अरे सुन ले अल्लाह के बंदे, फिर आप बोल लेना मेरे प्यारे भाई, एक मिनट तो बोलने दो, इतनी देर से बोलते जा रहे हो, हमें बोलने नहीं दे रहे हो मेरे भाई, एक मिनट तो बोलने दो। इतना तो तुम बोले हमारी बात सुनते रहे, हम थोड़ा सा पूछते हैं, तुम जरा घुमा फिरा करके फिर दूसरी टॉपिक पर लेके जाते हो। अच्छा मेरे भाई इस सवाल का जवाब दे दें ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। सुन लीजिए, एक मिनट खाली हम बोल रहे, फिर आप आराम से बोलिएगा मेरे भाई प्लीज। ये लगभग जो है 1.5-2 घंटा हो गया, लेकिन हम खाली चंद सवाल के लिए कहा था कि खाली मुफ्ती साहब का जो है हमें नंबर दे दीजिए, क्योंकि वो ज्यादा बोलेंगे नहीं, ज्यादा हम उनसे बात करेंगे नहीं, सिर्फ हम उन्हें जो यही तो आप लोग चाहते हो कि आलिम दीन को फोन करें और उनसे मतलब वो ज्यादा बड़बड़ तो करेंगे नहीं, और हम उनसे जो मन चाहेगा उनसे फतवा हम लेके और अहले हदीसों को बदनाम कर देंगे। लेकिन हमारे साथ बात करके उल्टा हो गया, हमने आपके हर एक मुगालते का मुंह तो जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके हजम नहीं हो रहा है। अरे यार तुम्हारा इल्म ज्यादा है, तुम्हारे घर के मुफ्तियों का इल्म जाहिल है वो। माज़अल्लाह तौबा। अब बताइए, अभी मैं तालिबे इल्म हूँ, मुझे ना अरबी ठीक से पढ़ना आता है, ना मुझे उर्दू ठीक से पढ़ना आता है, मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता, मैं तो इस्लाम में बिल्कुल जीरो हूँ, तो भी मेरे सामने आपकी हालत टाइट है। तो कहीं हमारे आलिम दीन मुफ्तियों के पास आप जाएंगे तो आपकी हालत क्या होगी? भाई सुन यार,
अहले हदीस की जो बुनियादी भाई जो किताबें हैं वो हैं कुरान और हदीस। अब कुरान और हदीस में जो मामला है जैसे नमाज, तो हम लोगों ने भाई ये किताब को भाई छाप दिया कि नमाज का तरीका, तो उसमें नमाज के भाई उसमें हदीस से लिया है। वहाँ हमारी बात नहीं है, वहाँ हमारी कोई भाई खाने पीने के आदाब हो गए, पड़ोसी के हुकूक हो गए, जानवरों के हुकूक हो गए, तो तमाम किताबें हम लोग ने छापी। तो वो किताबों में अगर कोई गलती हो तो आप बताइए ना। सुन, तूने अपने मुफ्तियों को जाहिल करार दे दिया और अपने आप को अपने मुफ्तियों से अच्छा समझा। लो मेरे भाई, अब तुम अपनी नाक की शक्ल से कयास कर लो। तूने अपने मुफ्ती को जाहिल करार दे दिया, कुछ सुनना नहीं है। आप अपने नाक की शक्ल से कयास कर लो। हम तो ये कह रहे हैं कि मैं जाहिल हूँ तो मेरे से जीत नहीं पा रहे हो, तो हमारे मुफ्तियों से क्या बात करोगे? तो वही तो कह रहे हैं ना तू कि तेरे मुफ्ती जाहिल है इसलिए उनसे हम जीत जाएंगे, और तू उनका तालिब इल्म होकर के तू हमको नहीं। मेरे जो मुफ्ती इकराम है ना, वो लोग तुम लोग की कितने फजात को ज्यादा जानते नहीं है। वो भाई हमारे जो मुफ्ती इकराम है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुलझे हुए दिमाग के हैं, वो लोग सुलझी हुई बात करते हैं, लेकिन उनको तुम्हारे जैसे जाहिलों का पता नहीं है ना। गया तू चला गया। हम चले गए? कहाँ चले गए? हाँ चला गया, अपने मुफ्तियों को जाहिल करार दे करके। तुम अपने अकल से फैसला करते रहो। मैंने पूरी ऑडियो में अगर अपने मुफ्तियों को कुछ भी कहा हो तो कहो ना। अब तुम अपनी अकल से झूठ बोलो, इसे कहते हैं सफेद झूठ, इसे कहते हैं सफेद झूठ। मैंने अपने मुफ्ती को जाहिल कहा भी नहीं, और ये जबरदस्ती इल्जाम तोहमत मान रहा है कि अफू खान ने अपने आलिम को मुफ्ती को जाहिल कह दिया। अरे तू अपनी बात को सुनना। अब हमने तेरे से पूछा था और यही कहा था कि मैंने तुमसे नंबर मांगा कि किसी मुफ्ती का नंबर दे दो, हम उससे सवाल करेंगे, वो हमको जवाब दे देंगे। तुमने क्या कहा कि तुम उल्टा सीधा बोल करके तुम उनसे जवाब ले लोगे और अहले हदीस को बदनाम करोगे। मेरा कहने का मतलब है तू तालिब इल्म हो करके तू इतनी बहस कर सकता है। तो भाई मैं इस फील्ड में हूँ ना, मेरा काम ही है तुम्हारे जैसे जाहिलों को सबक सिखाना। मेरे आलिमों का काम नहीं है तुम्हारे जैसे जाहिलों के मुंह लगना, अपना टाइम वेस्ट करना। लेकिन मेरा काम ही यही है, मेरे चैनल का नाम ही है एक्शन का रिएक्शन। मैं तुम्हारे जैसे जितने जाहिलों का एक्शन होता है मैं उसको रिएक्शन करके वापस कर देता हूँ। मुफ्ती जाहिल हो गया, छोड़ दे अब तेरे मुफ्ती की जरूरत नहीं है। मेरे मुफ्तियों के आगे तुम्हारे अल्लामा जाहिल है। तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा, जिसको एक हदीस नहीं पढ़नी आती, मनता शब्बा हब्बा पब्बा पता नहीं क्या क्या पड़ जाता है, उसकी हैसियत है हमारे मुफ्तियों से बात करने की। अरे अपने मुफ्ती को जाहिल करार दे भाई पैजामे में पेशाब कर मारोगे, ये ध्यान रखना अगर हमारे आलिम दीन से तुमने किसी टॉपिक पे बात की। यार छोड़ दे, हम तो तुम्हें तुम्हारे अंदाज में तुमको जवाब दिया है। तुम जिस तरीके से उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो वैसे तुमको जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमारे आलिम दीन तुमको मेरे भाई थोड़ी ना इतना टाइम देंगे। तुमने कहा ना कि तुम उल्टा सीधा करके मुफ्ती से सवाल करोगे, फिर फतवा लेकर के बहुत सारे लोग, बहुत सारे हनफी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस आलिमों को कॉल करके उल्टे सीधे सवाल करके उनकी ऑडियो को आवाम में डाल देते हैं और कहते हैं देखो अहले हदीस जो आलिम था वो भाग किया, जवाब नहीं दे पाया, तो तुम लोग जलील करते हो हमारे आलिमों को। इसीलिए मैं तुमको अपने आलिम का नंबर नहीं दे रहा हूँ। अरे तू छोड़ देना, तो अपने मुफ्ती को जाहिल करार दे दिया, बस बात खत्म हो गई। तो कहाँ दिया भाई? हाथ तो कुरान तुम सादिकीन, अपना सबूत पेश करोगे सच्चे हो तो। इसलिए मैं अगर वाकई अल्लाह का खौफ है तो बताओ मैंने कब कहा अपने आलिम को। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, तू कह रहा है कि मैं तालिब इल्म हूँ, तू तालिब इल्म होकर तुम मुझसे इतना सवाल कर सकता है। वो एक मुफ्ती होकर के उसके पास सैकड़ों किताबें होकर के कुरान हदीस की। भाई मुफ्ती बहस नहीं करता है, तुमने फोन किया बहस करने के लिए। मुफ्ती का काम होता है उसके पास जाओगे मसला लेके, वो तुमको मसले का दे देगा हल, ठीक। लेकिन तुम्हारा काम क्या, तुमको हल नहीं चाहिए, तुमको तो बहस करना है, मुनाजरा करना है, खत्ता शाही बगाड़ना है। तो तुम्हारी खत्ता शाही हमारे सामने बगर नहीं पा रही है, तो अब तुम भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कर दो। भाई हम समझ गए, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाला काम हो गया तुम्हारे साथ। अब जाओ तुम खम्बा नोचो। भाई तुम आला हजरत के आला नस्ल के कुत्ते की तरह टांग उठा के खम्बा गीला करो।